Welcome back. My name is Manish Katiyar. I am from Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. In our last topic, which was in lecture number 29, we have discussed about board meetings and audit committee, and various laws, various specific points we have discussed. I have already given the explanation on certain topics which students must very specifically focused on. Now we are moving forward for our next topic, which is auditor. Quite interesting topic. Who is auditor? Who can be appointed as an auditor? What are the duties and responsibilities of the auditor? We will discuss all these points in this particular lecture. So, let us move on. Lecture number 30, auditors. Auditors. Let's focus on this slide. An auditor is a person authorized to review and verify. An auditor is a person authorized to review and verify the accuracy of financial records and ensure that companies comply with tax laws. एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है. कई लोग समझ लेते हैं ऑडिटर वो पर्सन होता है जिसका काम होता है कि अकाउंट्स बनाना. जी नहीं, ऑडिटर कभी भी अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करता है. क्या काम होता है, ऑडिटर क्या करता है, कौन होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. प्लीज़ आप किसी भी तरह के मिथ जो आप पहले से समझते रहे हो उसको दूर करिए और यहाँ पे पढ़िए. An auditor is a person authorized to review and verify the accuracy of financial records and ensure that companies comply with tax laws. Auditor assess financial operations and ensure that organizations are run efficiently. They are tasked with tracking cash flow from beginning to end and verifying that an organization's funds are properly accounted for. करें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं. बेसिकली कहने का मतलब है रेवेन्यू लीकेज को फाउंड आउट करना. कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इंटरनल प्रोग्राम डिसाइड करते हैं. देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोग्राम. इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, the main duty of an auditor is to determine whether financial statement follow generally accepted accounting principles यानी कि गैप. To meet this requirement, auditors inspect accounting data, financial records and operational aspect of a business and take detailed notes on each step of the process known as audit trail. हर ट्रांजैक्शन की बारीकी को देखना, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, रिकॉर्ड करना, इन सब चीज़ों को काम वेरीफाई करने का काम ऑडिटर का होता है. सो बेसिकली आप देख रहे हो कि ऑडिटर का काम क्या है कि जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको इंस्पेक्ट करना और उनको रिव्यू करना. वंस कंप्लीट द ऑडिटर फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन ए रिपोर्ट दैट अपीयर्स एज ए प्रीफेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेपरेट प्राइवेट रिपोर्ट may also be issued to company management and regulatory authorities as well. Next, अब यहाँ पे कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता है, मीन्स एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन.
and disqualification. Eligibility मतलब the person who is eligible to get appointed as an auditor of a company, and a person though he is eligible to be appointed as an auditor but cannot be appointed as an auditor because of certain disqualifications, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. The provision relating to eligibility, qualification and disqualification auditors are governed section 141 of the Companies Act. A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. Only a person who has qualified the exams of ICAI and holds a degree issued by Institute of Chartered Accountants of India, वही पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिटर बन सकता है. ध्यान रखिएगा, टफ एग्जाम होता है थोड़ा सा. सेकंड, it may be noted that a firm whereof majority of the partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be auditor of a company. एक इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट किया गया, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट किया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो सीए इंस्टीट्यूट से उसके पास सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसको अपॉइंट किया गया. एक होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म अपॉइंट कर दी गई, कोई भी बड़ी फर्म है, बहुत सारी बिग फोर्स के सभी लोग नाम जानते हैं. अब उनको अपॉइंट किया गया तो कह रहे हैं उनकी फर्म के मेजोरिटी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट है, वेयर ए फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. कुल मिला के तीनों चीज़ों को समरी ये है कि केवल और केवल वो पर्सन कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ सक्सेसफुली क्वालिफाइड द एग्ज़ाम्स ऑफ, या कहें तो स्पेसिफिकली फाइनल एग्ज़ाम्स ऑफ सीए इंस्टीट्यूट. ठीक, आ गया. द डी पॉइंट बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना है. द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी. कह रहे हैं निम्नलिखित लोगों को कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है. अब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में नहीं, ऐसे होती ही नहीं है. सेकंड, अदर देन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सपोज मैं कंपनी का एम्प्लॉय भी हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री भी होल्ड करता हूँ, तो क्या मैं कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ. नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और हु इज़ द एम्प्लॉयमेंट एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कह रहे हैं कि आप किसी फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो रहे हैं तो आप उस फर्म के पार्टनर हैं या एम्प्लॉय हैं या किसी पार्टनर है उसके एम्प्लॉय हैं. तो ऐसी कोई भी क्रॉस रिलेशनशिप दिखाई पड़ रही है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं हो सकते, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं अपॉइंट हो सकते. अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इज सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी और सच होल्डिंग कंपनी. आहा, कह रहे हैं कि आप जिस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो रहे हैं या तो उस कंपनी में अथवा उसकी सब्सिडरी कंपनी में अथवा उसकी एसोसिएट कंपनी में आप कोई शेयर होल्ड करते हैं. कितना दूर तक का रिलेशन निकाला है.
It may be noted that the relative may hold security or interest in the company of a face value not exceeding rupees 1 lakhs. कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन, जब मैं पढ़ता था तब ये लिमिट 1000 हुआ करती थी, अब 1 लाख हो गई. It may be noted that the relative may hold security or interest in the company of a face value not exceeding rupees 1 लाख. अगर आपके पास शेयर्स हैं, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हमने आपको सिक्योरिटी का मतलब बताया है जब हम प्रोस्पेक्टस स्टडी कर रहे थे. तो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन, पार्टनर नहीं पर्सन, सिक्योरिटी अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी नॉमिनल फेस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. फेस वैल्यू की बात करी गई है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है. फेस वैल्यू कम, क्योंकि फेस वैल्यू के शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये 4 रुपये होती है, मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. बी, इट मे बी नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख शैल वेयर रिलीवेंट बी ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अदर सिक्योरिटी. अगर कंपनी के पास 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू की जो बात हो रही है, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, गारंटी कंपनी है, तो भी हो सकता है. हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में. नेक्स्ट, इज इंडेबिटेड टू द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी और 5 लाख से ज़्यादा. मतलब किसी पर्सन ने कंपनी को 5 लाख से ज़्यादा का लोन दे रखा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता उस कंपनी का. हैज़ गिवन गारंटी, गारंटी भी दे रखी है किसी पर्सन ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं हो सकता है. अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप, भाई साहब आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स के बारे में शायद डिस्कशन हो, विद द कंपनी, सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी. मतलब आपका किसी तरह का कोई भी कनेक्शन अगर निकल के आता है, चाहे आपने कंपनी को लोन दे रखा हो, कंपनी की सिक्योरिटी ले रखी हो, या आपने कुछ कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशंस, किसी तरह के बिजनेस रिलेशन, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस ना करके अपना बिजनेस कर रहे हैं. अ पर्सन whose relative is a director or is the employment of the company as a director or key manager person. कहते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन आपके रिलेटिव फला कंपनी में डायरेक्टर हैं या की मैनेजर पोजीशन होल्ड करते हैं तो भी आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं. मतलब आपका रिश्तेदार, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो रहे हैं लेकिन आपके रिश्तेदार उस कंपनी में डायरेक्टर, रिलेटिव डायरेक्टर, तो आप फर्म के सीए अपॉइंट नहीं हो सकते हैं. A person whose relative is next, a person who is in full-time employment elsewhere, or a person or a partner of a firm holding appointment as an auditor. यानी कि आप कहीं पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं एम्प्लॉयमेंट में, सपोज आप किसी बैंक में हैं, आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, तो आपको नेक्स्ट फर्म किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. अब आपको हमने अपॉइंटमेंट ऑडिटर से रिलेटेड कौन ऑडिटर हो सकता है, क्या काम है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन बता दी. क्वालिफिकेशन ही मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन में सारे पॉइंट्स को हमने कवर अप किया है. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होगा, देख लेते हैं, पढ़ते हैं लॉ क्या कहता है. The first auditor of the company other than government company shall be appointed by the board of directors. Time limit within 30 days from the date of registration of the company. Not issue of certificate. कंपनी का 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करिए. In the case of failure of the board to appoint the auditor, it shall inform the members of the company. पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा ऑडिटर्स को, और बोर्ड और डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो मेंबर्स को बोलेंगे सर हमने किसी तरह का ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाया, तो बोर्ड ऑफ फिर मेंबर्स 90 दिन के अंदर अंदर आप नया ऑडिटर अपॉइंट करके देंगे. और अगर मेंबर भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल विद इन 90 days एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट द ऑडिटर. अपॉइंटेड ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. इन द केस ऑफ a government company, the first auditor shall be appointed by the comptroller CAG or Comptroller Auditor General of India within 60 days.
In case the CAG does not appoint such auditor within the set above period, the board or director of the company shall appoint such auditor within next 30 days. ध्यान रखिएगा टाइम लिमिट. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट फर्स्ट ऑडिटर. कंपनी के नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड और डायरेक्टर विद इन 30 डेज अपॉइंट करेंगे. नहीं कर पाते हैं तो शेयर होल्डर्स 90 डेज में अपॉइंट कर देंगे. गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं आपको मालूम ही है. कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे और नहीं कर पाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करें. अगर अब जो आपने ओरिजिनल ऑडिटर अपॉइंट किया उसकी जगह दूसरा अपॉइंट करना है. कह रहे हैं द कंपनीज आर प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting and thereafter. Till the conclusion of every 6th meeting. यानी कि एक बार ऑडिटर आपने अपॉइंट किया. सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रही है, ये लॉ में बताया जा रहा है. जब आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो आज आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, नेक्स्ट एजीएम तक रहे, उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे वो अगले 5 एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे. 5वीं जो लास्ट ईयर होगा उसका जो कंक्लूजन 6th में आएगा तब आप उसको रिमूव कर पाएंगे. यानी कि एक बार सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो 5 सालों के लिए आप फ्री हो गए. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द CAG in respect of financial year appoint the auditor duly qualified to be appointed as an auditor within a period of 180 days from the commencement of the financial year. यानी who shall hold office is the conclusion of the annual general meeting. 180 दिन के अंदर अपॉइंट करना है ऑडिटर्स को. नेक्स्ट है पावर राइट्स ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर्स से क्या क्या राइट होते हैं, पावर्स होती हैं. राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना उनका राइट है. राइट टू इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेंट से इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं. राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग, चाहे वो जनरल मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग को भी शायद अटेंड कर सकते हैं वो. राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट एग्जामिन्ड बाय हिम. एंड राइट टू लीन. लीन का मतलब होता है जैसे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा हुआ राइट ऑफ लीन, यानी कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है उनके ऑडिटर के पोजीशन में, अगर ऑडिटर का पेमेंट नहीं होता है तो राइट ऑफ लीन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो पावर एंड राइट्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक. नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स. जो भी मैटर है इंक्वायरी करना उनका काम होता है. और कहीं पे कोई मैटर डाउटफुल होता है तो उसको डिस्क्लोज करना. ड्यूटी टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करेंगे, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को. ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट्स. ड्यूटी टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स. अगर उनको लगता है, ऑडिटर्स को लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने में किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो उस फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे. कब, कहाँ, कैसे करना देख लीजिए. रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमेटी. इसीलिए मैंने ऑडिट कमेटी लास्ट टर्न पर डिस्कस कर ली थी कि क्या होती है ऑडिट कमेटी. ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एलोबरेट कर लेते हैं. ऑडिटर्स जनरली 3 तरह की रिपोर्ट इशू करते हैं, क्लीन, क्लियर एंड क्वालिफाइड. क्लीन और क्लीन क्लियर तो एक ही शब्द होगा, क्लीन क्लियर, क्वालिफाइड एंड एडवर्स रिपोर्ट. यानी कि क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड एडवर्स रिपोर्ट, 3 तरह की रिपोर्ट इशू करता है ऑडिटर जब सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लेता है. तो क्लीन रिपोर्ट मतलब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स करी, उन्होंने चेकिंग करी, उनको लगा कि सब कुछ ठीक है, क्लीन रिपोर्ट. क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब उनको लगता है कि उन्होंने जो प्रोविजंस टैक्सेशन के लिए किए हैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, बाकी सब तो ठीक है. उनको लगता है कि जीएसटी के लिए ज़्यादा प्रोविज़न करना चाहिए था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कम किया. बोनस के लिए प्रोविज़न करके चलना चाहिए था, टीडीएस उन्होंने देर से काटा. ये कुछ क्वालिफिकेशंस जो ऑडिटर्स को ऑब्जर्वेशन में आई, ये क्वालिफिकेशन रिपोर्ट हो गई. और एडवर्स रिपोर्ट मतलब कुछ भी काम प्रॉपरली नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं एडवर्स रिपोर्ट. ठीक. तो इस तरीके से ऑडिटर्स
कौन हो सकते हैं, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो यहाँ पे हमारा ऑडिटर्स वाला जो पार्ट है वो कंक्लूड हो जाता है आगे। ठीक है, थैंक यू। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर देंगे। थैंक यू।